ریما ایک بہت ہی آرام دائق زندگی گزار رہی ہوتی ہے۔ اس کے پاس بہت پیسہ ہوتا ہے اور ایک سونے کا بہت بڑا گھر۔ اس کے سامنے سونے کا سوئمنگ پول ہوتا ہے جس میں وہ سوئمنگ کرتی ہے۔ گھر کے باہر بڑا سا سونے کا درخت ہوتا ہے جس پر بہت ہی خوبصورت پھل لگے ہوتے ہیں۔ اس کے گھر کی دیواریں بھی سونے کی ہوتی ہیں جس میں ہر ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں۔ وہ بہت ہی خوبصورت میک اپ کرتی ہے۔ اس کے گھر میں کھانے کے لیے ہر چیز موجود ہوتی ہے اور وہ بڑے مزے سے عیش و آرام کی زندگی گزار رہی ہوتی ہے۔ لیکن ایسا لائف سٹائل ریما کے پاس شروع سے نہیں تھا۔ شروع میں تو وہ بہت ہی غریب تھی۔ وہ ایک چھوٹے سے پرانے سے گھر میں رہا کرتی تھی۔ وہ اکیلی رہتی تھی۔ اس کے پاس کوئی نہیں تھا۔ اس کے پاس تو کھانے پینے کے لیے بھی پیسے نہیں تھے۔ وہ کسی امیر آدمی کے گھر اس کے پودوں کو پانی دیا کرتی تھی جس سے کچھ پیسے ملتے تھے تو وہ اپنے گھر کا گزارا کیا کرتی تھی۔ لیکن غریب ہونے کے ساتھ ساتھ ریما بہت نرم دل بھی تھی۔ وہ لوگوں کی بہت مدد کیا کرتی تھی۔ وہ چڑیا کو اور مرغیوں کو روزانہ دانہ ڈالتی تھی۔ ایک دن باغ میں ریما یوں ہی مرغیوں کو دانہ ڈال رہی ہوتی ہے تو وہاں سے ایک تتلی گزرتے ہوئے اس کو دیکھ لیتی ہے اور اس کو ریما کی یہ عادت بہت پسند آتی ہے اور وہ ایک غریب سی لڑکی کا روپ لے کر ریما کے پاس آتی ہے اور آ کر کہتی ہے کہ سنو بہن، میری بات سنو، میرے پاس کھانا کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں اور مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ کیا تم مجھے تھوڑے سے پیسے دے دو گی؟ میں نے کھانا کھانا ہے۔ تو ریما اپنی پاکٹ میں دیکھتی ہے تو اس کے پاس بس ایک ہی نوٹ ہوتا ہے اور اس نے بھی کھانا کھانا ہوتا ہے۔ لیکن ریما کے دل میں بہت رحم ہوتا ہے تو ریما کچھ دیر سوچنے کے بعد پھر اسے وہ پیسے دے دیتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ کھانا کھا لیجئے، یہ میرے پاس بس اتنے ہی پیسے تھے اور نہیں ہے۔ تو تتلی کو اس کی یہ ادا بہت پسند آتی ہے اور تتلی اس سے کہتی ہے کہ تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں؟ کون ہیں آپ؟ تو وہ اپنے اصلی روپ میں آ جاتی ہے جسے دیکھ کر ریما بہت ہی حیران ہوتی ہے اور اس کو سمجھ نہیں آ رہا کہ لڑکی نے روپ کیسے بدلا۔ تو تتلی ریما سے کہتی ہے کہ تم ایک بہت ہی نیک دل لڑکی ہو، میں بس تمہیں آزما رہی تھی۔ میں تمہیں ایک پھول دیتی ہوں، تم اس پھول کو جہاں بھی اگاؤ گی تو وہاں پر تمہارا ایک عالیشان سونے کا گھر بن جائے گا اور جس میں تمہارے لیے سب چیزیں ہوں گی۔ تمہارا پورا گھر سونے کا ہوگا، جو تم مانگو گی وہ گھر تمہیں دے گا۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، ہمیشہ غریبوں کی مدد کرنا ورنہ تم پچھتاؤ گی۔ تو ریما کو اس کی باتوں کی کچھ سمجھ نہیں آتی۔ ریما بس حیرت سے سن ہی رہی ہوتی ہے۔ تو پھر وہ پری وہاں سے غائب ہو جاتی ہے۔ ریما وہ پھول لاتی ہے اور وہیں گارڈن میں کہیں ایک سائڈ پر اس کو دبا دیتی ہے۔ تو جس کے بعد تھوڑی دیر بعد وہ پھول ایک خوبصورت سے محل میں بدل جاتا ہے جسے دیکھ کر ریما بہت ہی حیران ہوتی ہے اور اس کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا یہ کیا ہو رہا ہے۔ ریما اپنے کپڑوں کو دیکھتی ہے اور آس پاس کی چیزوں کو دیکھتی ہے تو وہ اس کو پری کی بات یاد آتی ہے کہ اس نے مجھے کہا تھا کہ تمہارا گھر اور سب چیزیں سونے کی ہوں گی۔ تو وہ جھٹ سے گھر کے اندر بھاگ جاتی ہے اپنا گھر دیکھنے کے لیے۔ وہ اندر جاتی ہے تو پورا گھر ہی سونے کا ہوتا ہے اور وہ میک اپ روم میں چلی جاتی ہے اور میک اپ کرتی ہے۔ جس کے بعد ریما اپنے سونے کے گھر سے پیسے نکال کر غریبوں کی مدد کرنا شروع کر دیتی ہے۔ روزانہ شام کو کئی غریبوں کے گھر کھانا بیچتی ہے اور جو بھی کوئی اس کے گھر پر آتا ہے تو اسے پیسے دے کر اس کی ضرورت پوری کرتی۔ اسی طرح ریما کی زندگی بہت ہی اچھی چل رہی تھی، لیکن اتنا امیر ہونے کے باعث ریما میں غرور آنے لگ گیا تھا۔ اب ریما کے دل میں لالچ پڑنے لگ گیا کہ میں لوگوں کو پیسے کیوں دوں، بھلا یہ تو میری نیکی اور ایمانداری کا نتیجہ ہے، میں لوگوں کو پیسے کیوں دوں۔ ریما کو اپنی دولت پر بہت ہی غرور ہونے لگا۔ ایک دن ایک بھوکی عورت آ کر ریما سے کچھ پیسے مانگتی ہے تو ریما اس کو ڈانٹتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ نکل جاؤ یہاں سے، میں نے کوئی ٹھیکہ لے رکھا ہے تم سب کی مدد کرنے کا؟ جاؤ اور خود کام کرو اور اپنی مدد آپ کرو، میرے پیسے اس طرح تو سارے ہی ختم ہو جائیں گے، میں اب کسی کو کوئی پیسہ نہیں دوں گی، دفع ہو جاؤ یہاں سے، نکل جاؤ۔ تو وہ لڑکی روتے ہوئے
वहाँ से चली जाती है। ये बातें सारी वो परी सुन रही होती है और परी को रीमा पर बहुत गुस्सा आता है और परी सोचती है कि रीमा तो बहुत गरूर में आ गई है, इसे सबक सिखाना पड़ेगा। तो परी अपनी जादू की छड़ी घुमाती है जिससे रीमा फिर से अपने पुराने घर में आ जाती है। रीमा देखती है तो वो बहुत हैरान हो जाती है, उसको कुछ समझ नहीं आता। तो फिर रीमा कहती है कि लगता है मैंने उस लड़की के साथ बुरा सलूक किया जिसकी वजह से परी ने अपना जादू वापस ले लिया। उसने मुझे कहा भी था कि सबकी मदद करना, बस मैं ही गरूर में आ गई थी। और ये ऐसा सोचकर रीमा उदास हो जाती है और फूट फूट कर रोने लग जाती है, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। गरीब आदमी के जानवर। रीमा अपने बाबा के साथ एक छोटे से घर में रहा करती थी। काफ़ी अर्सा पहले उसकी माँ का इंतकाल हो गया था, जिसकी वजह से रीमा को घर के सारे काम करना पड़ते। वो जब उसके बाबा काम पर जाते तो वो घर के सारी सफाइयाँ भी करती, कपड़े धोती, खाना बनाती और फिर वक्त निकाल कर पढ़ाई भी किया करती। वो अपने बाबा के साथ हर रोज़ नई नई चीज़ों की फरमाइश किया करती। जब भी उसके बाबा घर आते तो वो अपने बाबा से अलग अलग चीज़ों की फरमाइशें किया करती। वो अभी छोटी ही थी, जिसकी वजह से उसको इतनी समझ नहीं थी कि उसके बाबा उसकी इतनी फरमाइशें पूरी नहीं कर सकते। तो फिर उसके बाबा परेशान हो जाया करते और सोचते कि क्या मैं इस लायक नहीं जो कि अपनी बेटी की छोटी छोटी ख्वाहिशें ही पूरी कर सकूं? काश मेरे पास इतने पैसे होते कि मैं अपनी बेटी की ख्वाहिशें पूरी कर सकता। एक दिन उसके बाबा जब घर आते हैं तो रीमा अपने बाबा से कहती है कि बाबा बाबा मैंने स्कूल की फ़ीस देनी है, मुझे पैसे दीजिए। तो उसके बाबा कहते हैं कि ठीक है बेटा, मैं दे देता हूँ। तो फिर उसके बाबा बाहर चले जाते हैं और जाकर अपनी पॉकेट से पैसे निकाल कर देखते हैं तो उनके पास बहुत ही कम पैसे होते हैं और वो सोचते हैं कि अगर मैंने ये पैसे रीमा को फ़ीस के लिए दे दिए तो हम घर का खर्चा कैसे करेंगे? ईद भी आ रही है, रीमा को सूट भी लेकर देना होगा। अब मैं क्या करूं? मैं ऐसा करता हूं, अपने जानवर बेच आता हूं, जिससे हमें पैसे मिलेंगे तो मैं सारे काम कर लूँगा। फिर वो घर आता है और आकर अपनी बेटी से कहता है कि मैं शहर जा रहा हूँ जानवर बेचने। जब मैं आऊँगा तो मेरे पास बहुत सारे पैसे होंगे और फिर मैं तुम्हारे स्कूल की फ़ीस भी भर दूँगा। मुझे एक दिन लग सकता है, तो तुम अपना ख्याल रखना। रीमा बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि ठीक है बाबा आप जाइए। तो फिर उसका बाप जानवर लेकर वहाँ से निकल पड़ता है। जब वो जा रहा होता है तो रास्ते में शाम हो जाती है और रीमा के बाबा थक कर बैठ जाते हैं और सोचते हैं कि अगर मैं सो गया तो कहीं कोई मेरे जानवर ना खोल कर ले जाए। मुझे जाकर इनकी पहरेदारी करनी होगी। कुछ देर वो यूं ही बैठा रहता है, लेकिन फिर आखिरकार उसे नींद आ जाती है और वो सो जाता है। वहाँ से एक चोर गुजर रहा होता है, उसकी नज़र बूढ़े आदमी के जानवरों पर पड़ती है तो वो चुपके से उसकी तरफ बढ़ने लग जाता है ताकि उसका जानवर खोल कर ले जाए। जैसे ही वो आगे बढ़ रहा होता है तो बूढ़े आदमी की आंख खुल जाती है और वो झट से उठ जाता है और घबरा जाता है और वो कहता है कि अरे कौन हो तुम और यहाँ पर क्या करने आए हो? मैं चोर हूँ और मैं तुम्हारे जानवर लेने आया हूँ। चुपचाप मुझे अपने जानवर दे दो। नहीं नहीं, मैं तुम्हें अपने जानवर नहीं दूंगा। अगर तुम नहीं दोगे तो मैं तुम्हें गोली से मार दूंगा। तो वो अपनी पिस्तौल निकाल लेता है। रीमा के बाबा बहुत घबरा जाते हैं और बहुत डर जाते हैं। वो अपनी पॉकेट में हाथ डालते हैं तो उनको अपनी बेटी का खिलौने वाला चाकू मिलता है। तो वो चाकू निकाल कर कहते हैं कि अगर तुमने मुझ पर पिस्तौल से हमला किया तो मैं भी तुम्हें चाकू से ज़ख्मी कर दूंगा। जिससे चोर घबरा जाता है और वो सोचता है कि अरे मेरे पास तो नकली पिस्तौल थी, इसमें तो गोलियां भी नहीं है। ये तो बच्चों के खेलने वाली पिस्तौल है। अगर इसने चाकू से मुझ पर हमला कर दिया तो मैं क्या करूँगा? मैं तो बहुत ज़ख्मी हो जाऊँगा। तो चोर कहता है कि ठीक है, मैंने तुम्हें माफ़ किया, जाओ, मैं नहीं लेता तुम्हारे जानवर। और चोर काफ़ी घबरा जाता है और झट से वहाँ से भाग जाता है। रीमा के बाबा भी बहुत घबराए होते हैं और वो सोचते हैं कि शुक्र है चोर चला गया। अगर उसे पता चल जाता कि मेरा चाकू नकली था तो उसने मुझ पर हमला ही कर देना था और फिर मैंने क्या करना था। शुक्र है मेरी जान छूटी।
और फिर सुबह होते ही रीमा के बाबा अपने जानवर लेकर शहर की तरफ निकल पड़ते हैं और अच्छे दामों में जानवर को बेचकर खुशी खुशी घर वापस आ जाते हैं। और जब वो घर वापस आते हैं तो उसकी बेटी इसको देखकर बहुत खुश होती है और रीमा के बाबा अपनी बेटी को पैसे दिखाकर कहते हैं कि देखो बेटा, हमारे पास कितने सारे पैसे आ गए हैं, अब मैं तुम्हारी स्कूल की फ़ीस भी भर दूंगा और तुम्हें ईद के लिए एक अच्छी सी फ्रॉक भी लेकर दूंगा। रीमा बहुत खुश हो जाती है और फिर उसके बाबा उसको ले जाकर एक अच्छी सी फ्रॉक ले देते हैं। जिस घर आते ही रीमा उस फ्रॉक को पहन लेती है और घूम घूम कर अपने बाबा को दिखाती है और बहुत खुश होती है। उसका बाप भी बहुत खुश होता है कि उसने अपनी बेटी की एक ख्वाहिश तो पूरी की। अरे नहीं नहीं, दूर जाओ दूर जाओ, मुझे कुछ मत कहना, मैंने क्या बिगाड़ा है, यहाँ तो इतने सारे सांप हैं, अब मैं क्या करूँ, अरे अरे दूर हटो दूर हटो। ऐसा कहते कहते रीमा की आंख खुल जाती है और रीमा बहुत ही घबराई होती है और वो उठकर बैठ जाती है और कहती है कि अरे आज फिर मुझे वही ख्वाब आया, मुझे पता नहीं अपने ख्वाब में ये सांप क्यों नज़र आ रहे हैं और वो सांप भी सुनहरे रंग के होते हैं, ऐसा लगता है जैसे सोने के हों और वो मुझ पर हमला भी कर रहे हैं लेकिन मुझे काट नहीं रहे, पता नहीं इसका क्या मतलब है। मैं तो इस बात से बहुत ही परेशान हो रही हूँ। अरे ये क्या, मेरे तो कॉलेज जाने का टाइम हो गया है, अब मुझे कॉलेज जाना पड़ेगा। और फिर रीमा उठती है और उठकर तैयार होकर कॉलेज चली जाती है। वहाँ पर रीमा अपने दोस्त को अपनी बात बताती है और कहती है कि आज फिर मुझे वही सांपों का ख्वाब आया। मेरे इस ख्वाब में जो सांप आते हैं वो ऐसा लगता है जैसे सोने के हैं। वो मुझ पर हमला करते हैं लेकिन मुझे डसते नहीं। वो मेरे आसपास होते हैं लेकिन मुझ पर हमला नहीं करते। पता नहीं इसका क्या मतलब है। मैं तो बहुत परेशान हूँ इन बातों से। तो उसका दोस्त कहता है कि चलो। चलो रीमा, स्ट्रेस मत लो, चलो हम कैंटीन में जाकर कुछ खाते हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम परेशान मत हो। और फिर वो दोनों कैंटीन में जाकर बैठ जाते हैं और खाना खाना शुरू कर देते हैं। रीमा का मूड भी अब अच्छा हो चुका होता है। तो रीमा का दोस्त कहता है कि आज रात मेरे घर में पार्टी है और तुम्हें ज़रूर आना है, मुझे तुमसे कुछ बात भी करनी है। अच्छा चलो ठीक है, और रीमा मान जाती है। फिर वो क्लास लेने चले जाते हैं। जब वो क्लास ख़त्म होती है तो फिर रीमा अपने घर जाती है और जाकर अच्छा से ड्रेस पहनकर तैयार हो जाती है। रीमा बहुत ही प्यारी लग रही होती है और वो फिर अपने दोस्त के घर पार्टी पर चली जाती है और सोचती है कि पता नहीं क्या बात करनी होगी उसे मुझसे। और फिर उसके घर पार्टी पर चली जाती है। वहाँ पर जाकर कहती है कि तुमने मुझसे क्या बात करनी थी, मैं तब से सोच सोच कर परेशान हो रही हूँ। अरे रीमा, तुम कितना परेशान होती हो, मैं अभी बताता हूँ, अभी पार्टी तो एंजॉय करो। नहीं नहीं, मुझे अभी जानना है, मुझे बताओ क्या बात करनी थी तुम्हें। अच्छा चलो फिर मेरे साथ। और फिर वो रीमा को पार्टी से लेकर बाहर चला जाता है। वहाँ पर पास में ही एक जंगल होता है, वहाँ जंगल की तरफ रीमा को ले जाता है। रीमा कहती है कि अरे ये तुम कहाँ जा रहे हो, यहाँ तो आगे जंगल है, कहाँ ले जा रहे हो मुझे। तुम्हें मुझ पर यकीन है ना, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, चलो मेरे साथ। और फिर वो रीमा को आगे ले जाता है। वहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत जगह होती है। तो रीमा कहती है कि अरे ये तो वही जगह है जो मेरे ख्वाब में आती है, मैंने तुम्हें बताया था ना, ये बिल्कुल वही जगह है, यहाँ पर बहुत सारे सांप थे। तो फिर वो रीमा का दोस्त कहता है कि आ जाओ। तो फिर सारे सांप आ जाते हैं, वो सुनहरे रंग के होते हैं। रीमा देखकर बहुत हैरान हो जाती है और वो कहती है कि अरे ये क्या, ये तो वही सांप है जो मुझे ख्वाब में आते हैं। अरे ये तुमने कैसे बुलाए, तुम कौन हो, ये सांप तो मुझे मार ही देंगे, पीछे हटो दूर हटो मुझसे। और फिर वो रीमा रोने लग जाती है और अपने दोस्त से कहती है कि कौन हो तुम और मुझसे और मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। तो उसका दोस्त कहता है कि घबराओ नहीं रीमा, ये तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। तो रीमा बहुत परेशान हो जाती है और वो रोने लग जाती है, जिस पर उसका दोस्त कहता है कि तुम्हें मुझ पर यकीन है ना, अब मैं जो तुम्हें बताऊंगा वो तुम्हें ध्यान से सुनना है। और उसका दोस्त आंखें बंद करके खोलता है तो वो एक सांप होता है। आधा वो सांप होता है और आधा इंसान होता है। रीमा देखकर बहुत हैरान हो जाती है और कहती है कि अरे ये क्या, ये तुम ही हो, ये कैसे, मुझे तुमसे बहुत डर लग रहा है, मुझे यहाँ से जाना है, बस अपने सांपों को यहाँ से दूर हटाओ। और तुम कौन हो, मुझे तुमसे बहुत डर लग रहा है। अरे नहीं रीमा, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मैं तुम्हें बस अपनी हकीकत बताने के लिए आया हूँ। मैं दरअसल तुमसे शादी करना चाहता हूँ और मैं शादी करने से पहले तुम्हें अपनी हकीकत बता देना चाहता हूँ कि मैं एक सांप हूँ।
सांप हो और तुम तो मुझे डस भी लोगे। नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, बल्कि हम दोनों तो दोस्त हैं ना। मैं तुम पर हमला नहीं करूंगा, मैं बस तुम्हें अपनी हकीकत बताना चाहता था और तुम मुझ पर यकीन कर सकती हो। और जिसके बाद रीमा को अपने दोस्त पर यकीन होने लग जाता है और वो फिर मान जाती है और फिर वो दोनों शादी कर लेते हैं और फिर वो दोनों एक अच्छी लाइफ गुजारने लग जाते हैं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट करें। शुक्रिया।